Ah! What's up? What's up? What's up? Hi. Good morning. So we are senior creators and producers. Yeah. Everybody's in today. It's a big show you're shooting. Kajaria presents Jan Gan Man, only on Jio TV and Jio TV Plus. So welcome to Jan Gan Man. I've been thinking about this while I was driving here as to how do I introduce you, because you are not a guest on this show. You are a friend. Should I call you Nakul Mehta? Should I call you Knox? Should I call you Kake? Should I call you Sufi ke Papa? But this is amazing, man. I'm so happy we're doing this. Yaar, Kake, I'm so glad that you're doing this because I know how passionate you are about our heroes, our national heroes. Why Jan Gan Man? Tell me that first. I love the name. Yeah? Yeah, I love it. Yeah. Jan Gan Man, I think there's not too many people talking about this, talking about India, talking about patriotism. हम pop culture में ना बहुत सब western influence है ना pop culture का बहुत ज़्यादा, तो memes हो या कुछ भी हो, हम why can't you, when you're talking about somebody who is a girl, for example, who's amazing at what she does, why can't we say that, dude, she's like Rani Lakshmibai? Why can't we just say that? Why can't that become pop culture? And make it very, today it could be like, it's like we're talking about a friend. Yeah. You know, if Bhagat was a friend, I wish he was a friend. Yeah, I think that's cool, and we should do that. I think celebrate all of them, man, and talk about them like we talk about our heroes, right? Like Shah Rukh ke naam hai, Yeah. Salman. Like we have stories. I think we should have anecdotes of all these guys, Absolutely. like at the tip of our fingers. You know, पता है Bhagat ने क्या किया था इस situation में? Yeah. How cool would that be? पता है Ashfaq ने क्या किया था? Exactly. You know, so cool it would be. I'm so glad. Yeah, we're doing. Let's this. hope we can do this. What are your earliest memories of maybe, I don't know, 15th August in school or 26th Jan in school, or even just like growing up? Yeah, it may not sound like the greatest camera bite to really give, but you know, initially when I was really young, 15 August, मतलब school 2 घंटे जाना है, झंडा Flag hoisting होगी, and then you'll get a beautiful मोतीचूर का लड्डू, खा के घर आना है, छुट्टी हुआ. I think in a lot of ways, it took a pandemic to hit us. For at least a lot, I think at least I can talk about myself, for me to realize that what really freedom is. Whilst we had the comforts of our homes and we had access to khana pina tha, but we couldn't meet each other. You know, we used to do video calls. Yeah. But in some sort of way, I realized that imagine if all of this was taken away from you, you couldn't meet people ever again. You could never go outside. You would never know if the world would be okay. And you had the basics to take care of you. Is that enough? And that's when I realized I don't have freedom. Like that little, like 5 minutes going up to the terrace and getting that fresh air and looking at the gorgeous sky used to be freedom. True. And used to be so precious. And I think that's when it hit me in a big way that we take this for granted. Absolutely. So हमारे लिए आज़ादी ये है, पर उनके लिए आज़ादी तो कितनी बड़ी चीज़ थी. True. You know, तो I think आज जाके समझ आ रहा है कि 15 अगस्त असल में क्या है. थोड़ा बहुत. Freedom to me also, for example, is, and you know me very well, is that freedom to me is extremely important in my, not just professional life, but personal life, in every sphere of my being, in that sense. It's almost like, it's like breathing, right? You need it. It's obvious. Also for us, maybe, because as creative artists, I think we create better when we have a sense of freedom. I feel I create better on a set where I feel loved, where I feel there is more freedom to create the way I would like to. It's almost like a springboard to do and achieve greater things. Story शुरू करें? करते हैं? Superb. Once upon a time. The year was 1897. इंग्लैंड में क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली सेलिब्रेट हुई जा रही थी. वहीं इंडिया में भूकंप आया था, सूखा पड़ा था.
बकिंगम पैलेस में वाइन की ग्लासेस क्लिंकिंग की जा रही थी, तभी इंडिया में लोग पानी के लिए तरस रहे थे। ऐसे भारत में 11 जून 1897 को यूनाइटेड प्रोविंस, जो आज का उत्तर प्रदेश है, शाहजहांपुर, वहां पर एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ जो अपने कलम से ही क्रांति लाए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में है। लाइन तो सुनी होगी फिल्मों में, गानों में, आज के दिन लोगों के व्हाट्सएप स्टेटसेस पर, है ना? पर ये लाइनें लिखी किसने है? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। मिजाज से शायर, मर्जी से फ्रीडम फाइटर। जो शायर मोहब्बत के बारे में शायरी ना करे, वो शायर कैसे कहलाएगा? हमारी मोहब्बत औरों से जुदा है, हमारी मोहब्बत औरों से जुदा है, हम आशिक अपने देश पर फिदा है, हमारी शादी को स्वतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाएगा। यार, जब भी हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की बात होती है या राम प्रसाद बिस्मिल का जिक्र होता है, तो उनका नाम अकेले नहीं लिया जाता है। जैसे तेरा और मेरा, जब भी कोई पूछता है कि निष्का है, नॉक्स के साथ होगा, वैसे ही उनका नाम हमेशा उनके घनिष्ठ मित्र, खास दोस्त के साथ लिया जाता है, जिनका नाम था अशफाक उल्लाह खान। एक माँ की नहीं, एक मातृभूमि की संतान थे। अशफाक और बिस्मिल दोस्ती के मिसाल थे। शायर थे दोनों, देश के लिए मर मिटने को वो हरदम तैयार थे। राम प्रसाद और अशफाक यारों के यार थे। अशफाक बिस्मिल के लफ्जों के कायल थे। ब्रिटिश भारत में लिख लिख कर दोनों के कलम घायल थे। मिलकर उन्होंने ऐसा इतिहास लिखने की ठान ली, सुखाई ना सूखे उन्होंने अपने लहू को आजादी की स्याही मान ली। सो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, यार, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो मजे की बात यह है कि राम प्रसाद बिस्मिल को ना बचपन में पढ़ाई लिखाई का कोई शौक नहीं था, पर उनके पिताजी बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के थे, मेरे पिताजी की तरह। तो उन्होंने उन्हें फोर्स किया कि स्कूल तो जाना है, पढ़ाई तो करनी है। स्कूल में उन्होंने इंग्लिश, हिंदी और उर्दू की तालीम मिली, और उसके बाद कहीं जाकर उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें पोइट्री लिखने का बड़ा शौक था। अब उनके पिताजी के बारे में अगर थोड़ा जाने तो शाहजहांपुर में म्यूनसिपलिटी बोर्ड में काम किया करते थे, मतलब मध्यम वर्ग से बिलोंग करते थे। लेकिन पिताजी की आमदनी कुछ खास थी नहीं, तो 8वीं कक्षा में उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। एंड देन ही डिसाइडेड टू फॉलो हिज पैशन एंड हिज पर्पस इन लाइफ। फ्रीडम स्ट्रगल में जुट गए। वही जो इट्स सो इंटरेस्टिंग दैट जिन्होंने अपने कलम से क्रांति लाई, हाँ, उन्हें पढ़ाई लिखाई का शौक नहीं था बचपन में, हाँ, स्पेशली। वही अशफाक अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे थे, और आई थिंक मजे की बात यह है कि उनके फैमिली में किसी ने ग्रेजुएशन तक नहीं किया था। और अशफाक और बिस्मिल में एक चीज कॉमन थी, दोनों में शायरी का कीड़ा था, है ना? तो एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अशफाक हसरत के पेन नेम से जाने जाते थे वो, और हसरत की सिर्फ एक ही हसरत थी कि वो अपने फेवरेट शायर राम प्रसाद बिस्मिल से बस एक बार मिल ले। फैन बॉय मोमेंट, फुली। ब्रिटिश सरकार में बिस्मिल नाम के बड़े ही चर्चे थे। उनकी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन मातृविधि से फिरंगी काफी डरते थे। युवाओं को इकट्ठा कर निकल पड़े थे बिस्मिल अमीरों की तिजोरियां खाली करने। शब्दों को हथियार बनाकर निकल पड़े थे वो लड़ने और मरने। दुनिया में मैं गुलामी का नाम मिटा दूंगा, एक बार जमाने को मैं आजाद बना दूंगा। बेचारे गरीबों से नफरत है जिन्हें, बेचारे गरीबों से नफरत है जिन्हें, एक दिन मैं उनकी अमीरी को मिट्टी में मिलाऊंगा। ऐसी कुछ लाइनें बिस्मिल पत्रिकाओं में लिखकर लोगों को एकजुट करते थे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है भी। शाहजहांपुर में एक मीटिंग थी जहां बिस्मिल आए थे भाषण देने। कहते वहीं पहली बार बिस्मिल और अशफाक की मुलाकात हुई। देश प्रेम की इस गाथा में सौतन साली फिरंगी थी। एक सांस पर मर मिटने वाले देश को दीवानों की कहां तंगी थी। दो दीवाने ऐसे मिले जैसे साहिल और सैलाब। आया एक ऐसा तूफान जिसका नाम था इंकलाब। तो ऐसी कुछ लाइनें पत्रिकाओं में लिखकर बिस्मिल लोगों को जोड़ते थे। दोनों का एक ही सपना था, आजादी। और दोनों मानते थे कि आजादी पाने के लिए उन्हें हथियार की जरूरत थी, और हथियार पाने के लिए किसकी जरूरत थी? पैसों की, राइट। एंड एक और इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक और अगर सेगवे लें तो बिस्मिल एक बार शाहजहांपुर से लखनऊ ट्रेन में सफर कर रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि ये जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स, वो अपना पैसा ट्रेन से ट्रांसफर किया करते थे। एंड
जिस तिजोरी में वो ट्रांसफर करते थे उसमें ताला नहीं था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स का ये मानना था, या समझो ईगो थी उनकी, कि उनके पैसे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं करे, हमसे कौन चुराएगा। करेक्ट, ये ब्रिटिशर्स का मानना था। पर अशफाक और बिस्मिल मानते कहाँ थे। मुशारे तो कई लूटे थे उन्होंने, लेकिन अब ट्रेन लूटने की बारी। क्या बात। तो वैसे कांड तो तूने और मैंने भी काफी किया है, जिनके बारे में हम बात कर नहीं सकते। करेक्ट। लेकिन आई थिंक ये जो काकुरी कांड जिसे कहा जाता है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। 9th August 1925. I still remember the date very, very clearly because it was around the time my grandfather, my nana, was born around the same time. So this date kind of stays with me, यार. So 9th August 1925 रात के 2:42, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। क्रांतिकारियों ने इस ट्रेन को काकोरी में रोका। तो बिस्मिल ने सबसे पहले जो ट्रेन में सारे पैसेंजर्स सफर कर रहे थे, उन्हें उनसे जाके कहा कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, हम यहाँ सिर्फ ना अंग्रेजों का खजाना लूटने आए हैं। काकोरी कांड को अंजाम देने वाले सिर्फ ये दो नहीं थे, 10 नौजवान थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथनाथ गुप्ता, मुकुंदी लाल, मुरारी लाल गुप्ता और बनवारी लाल। नाम बता दिए मैंने कैमरा में। अब तो बेसिकली सरकार के खजाने से 8,000 रुपए लूटे गए एंड सब लोग यहाँ वहां हो गए। पर इस कांड ने ना ब्रिटिशर्स को झंझोड़ के रख दिया, मतलब अंदर से हिला दिया। एंड वो लग गए सबको, उनके सबके पीछे लग गए। एंड यहाँ तक कि जो स्कॉटलैंड यार्ड उनको बुलाया गया तफ्तीश के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। एंड 26 अक्टूबर 1925 को आई थिंक दैट वाज द डे जब बिस्मिल को अंग्रेजों ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। वहीं अशफाक ब्रिटिशर्स से अभी भी सॉर्ट ऑफ छुपते रहे एंड उन्होंने अपना रिबेलियन छोड़ा नहीं। वो अभी भी फ्रीडम फाइटर से मिलते रहे, उनका मजमा लगा। बाकी दिल्ली पहुंच गए थे शायद। दिल्ली पहुंच गए थे, बाकी के फ्रीडम फाइटर्स से मिल रहे थे। वहां जाकर उनके अफगानी दोस्त जिसने उन्हें धोखा दिया, राइट, और अशफाक को भी अरेस्ट कर लिया गया। सरकारी गवाह बनने का लालच देकर वो यार को यार से भिड़ा रहे थे। डिवाइड एंड रूल वाला कार्ड खेलकर वो दो भाइयों में फूट ला रहे थे। पर दोस्ती उनकी बेमिसाल थी, काट सके ना उनकी दोस्ती को, बनी नहीं ऐसी कोई तलवार थी। दोनों को काफी टॉर्चर किया गया, पर फिर भी उन्होंने एक दूसरे के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी। वही बिस्मिल का मुकदमा शुरू हो रहा था एंड बिस्मिल साहब ने कह दिया कि मैं सरकारी लॉयर नहीं लेने वाला, मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा। आई मीन इमेजिन उस दौरान, उनकी उम्र ही क्या थी, 24-25 साल के थे शायद। बिस्मिल ऑपोजिशन लॉयर से खुद अंग्रेजी में बहस करने लगे और इस बात से चौंक कर जज ने उनसे पूछा कि फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी हैव यू टेकन योर डिग्री ऑफ लॉ, ऐसे कुछ बोला होगा, मतलब मैं तो पैराफ्रेज कर रहा हूँ। जिसकी जवाब में बिस्मिल के चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट से आई और उन्होंने कहा कि एक्सक्यूज मी सर, किंग मेकर डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री। 10 महीने मुकदमा चलने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लहरी को फांसी की सजा सुनाई गई। बाकी क्रांतिकारियों को कैद की सजा हुई। पर इसमें भी एक सेगवे लेते हैं। ठाकुर रोशन सिंह, जो कि एक और फ्रीडम फाइटर थे, इज वन ऑफ दोज 11 क्रिकेट प्लेयर्स जिनको सब जानते नहीं है, लेकिन काकोरी कांड में ये शामिल नहीं थे, लेकिन फ्रीडम फाइट के लिए उन्होंने भी काफी कंट्रीब्यूट किया था। और उन्हें राष्ट्रद्रोह के लिए ना 5 साल की सजा हुई थी। जब उन्हें पता चला कि उनके बाकी के जो साथी है सबको फांसी की सजा हो गई, तो बोले ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी चलता है। तो उन्हें पता क्या किया, उन्हें गोरे को बुलाया, इधर आ, जूता निकाला और दे मारा चेहरे पर। सीरियस, would you believe it? Damn. This is an act of rebellion. और फिर क्या होना था, उसके बाद उन्हें भी सजा हो गई फांसी की। जूता मारने के लिए फांसी की सजा हुई। वाओ। 19 दिसंबर 1927, इस दिन बिस्मिल, अशफाक, राजेंद्र और रोशन को फांसी हुई। अशफाक ने फांसी पर चढ़ने से पहले नमाज पढ़ी और उनकी माँ भी उनसे मिलने आई। शेरनी थी वो जिसने शेर को जन्म दिया था, शेरनी थी वो जिसने शेर को जन्म दिया था। हाथ में अशफाक के उसी ने एक कलम दिया था। कोई संदेश हो तो बता दे, तेरी पार्टी तक ले जाऊंगी। आजादी तेरा सपना है, मैं तेरे लिए उसे पूरा करके दिखाऊंगी। मां को देखती, हालांकि अशफाक ने
काफ़ी कुछ देख लिया था, काफ़ी कुछ कर लिया था, लेकिन अपनी माँ को देखकर एक फ्रीडम फाइटर हार गया और एक बेटा अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोने लगा। उसे देखते ही उसकी माँ तपाक से बोली कि अगर रोना ही था तो ये रास्ता चुना ही क्यों? मतलब ये जो फ्रीडम स्ट्रगल का रास्ता है उसे चुना क्यों? इस रास्ते पर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। अक्सर जब माँ बाप से फटकार मिलती है ना तो बच्चे डर जाते हैं, हिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी माँ से फटकार मिलने से अशफाक को हिम्मत मिली, साहस मिला, एंड उसके बाद तुरंत उनके जो आंसू थे वो मुस्कान बन गई और उनका सारा डर जैसे निकल गया। हमेशा के लिए सोने वाले थे वो, और ऐसे में उन्होंने देशभक्ति के गानों को अपनी लोरी बना लिया। वही राम प्रसाद बिस्मिल फांसी पे चढ़ने से एक रात पहले उन्होंने एकांत में ये रात गुजारी और अपने सारे थॉट्स को एकजुट किया और अपने कलम की स्याही से कुछ ऐसी नज्म लिखी। ना मयस्सर हुआ राहत से मेल हमें, जान पर खेल कर भाया ना कोई खेल हमें, एक दिन को भी ना मंजूर हुई बेल हमें, याद आएगा अलीपुर का जेल हमें। लोग तो भूल ही जाएंगे इस अफसाने को। बिस्मिल साहब की इन लाइनों को पूरा करने की गुस्ताखी मैं करूंगा। लोग भुला ना पाएंगे इस अफसाने को। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहरी और ठाकुर रोशन सिंह। देश याद रखेगा तुम दीवानों को, देश याद रखेगा तुम दीवानों को। Wow, man. Thank you for sharing this story. Wow, there's just so many things that I don't think even I knew, and I'm kind of mildly interested in this. Mildly. Wow. You know, it's funny in pop culture or our films, we have so many references, right? Of like मेरे लिए सबसे बड़ी दोस्ती की कहानी होती है दिल चाहता है, right? या आप शोले देख लो, जय वीरू की कहानी। Yeah, we've never immortalized Bismil and Ashfaq. these are regular dudes in a way, who went beyond themselves, right? And it's such a wholesome story. It has sacrifice, it has courage, it has valor, it has art, it has poetry, it has fun, it has chutzpah, man. That Thakur Roshan Yeah. गोरे के इसको जूता मार दिया यार। मतलब ये किस किस्म का पागलपन या किस किस्म का जुनून है, जुनून है, right? सर फिरे थे सारे। There's a little anecdote of my own which I'll kind of tell you is जब आपने शुरू की ना पोएट्री तो सरफरोशी की तमन्ना से आपने शुरू की। This may actually make me seem like I'm a little crazy, but I do this. We have packed days, right? We go through so many things during so many emotions, and I find myself either losing focus, and when I want to kind of bring myself back, find my balance, find my thing, I often recite सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, and I find that always centers me. So वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है. So I'm so happy you selected this and you started the poetry also with kind of that. Love it. How's it been for you, just kind of going back and prepping sort of to kind of do this? Beautiful. You know, think about it. I think until a few years ago, जब भी मैं freedom या patriotism के बारे में सोचता था, a lot of reference points of Bollywood, right? Yes. तो border का गाना, हाँ. संदेश से आते हैं, like you know, you dreamt one day you'll go to war and your wife will see you off, or the reverse, right? Can be. More so with your lineage, I mean the defense forces. So.
And it's funny, I actually joke about this with Janki so much that, she's like, why does your life have to be so busy? Why do you have to be so like strung up about everything? I'm like, dude, imagine Sachin's wife telling him this. And then she, of course, laughs about it. You think you're Sachin. But in my head, I am, man. In my head, I am Bismil. In my head, I am Ashfaq. In my head, I'm Rajinder. I'm definitely Thakur Roshan Singh, who for a friend would get into the jail because you want to spend that night together and not like hear stories the next day, right? Miss out. Yeah. FOMO. Yeah, have FOMO. So whilst my reference points for those, I realize inspiration for all of them came from these OGs, man, and they are OGs, right? Absolutely. I think what's interesting is if you really sort of distill this and you break this down, right? कौन थे लोग? Regular kids, interested in art, poetry, languages, both of us are, I know. I'm interested in Urdu, took lessons. But they found their purpose. They found their larger purpose in life. And I feel that's really the key. So we may be engineers, we may be doctors, we may be artists, we make films, we might be a sports person. Those are things we do, right? But all of that should take us to what our larger purpose in life is. And that's what I take from these gentlemen, yeah. And also ladies, a lot of them who I'm hoping you'll cover. Some wonderful ladies who've been part of the struggle. I think what we take away is to have that purpose in life, and if you don't have it, to find it, because it's there. It's there for all of us. All of us are born for a unique reason, right? We may not know it, we may not find it. We might be living in the moment, but not to forget that there is something larger which governs us, which is the reason we are here, which is larger than ourselves, which is larger than just me enjoying this black coffee, which is larger than you and I having this conversation. Maybe someone watching this conversation might find that one thing which Bismil did or which Ashfaq did, and that will Inspire. set the tone for their lives. Yeah. Fantastic. Thank you. Thank you for doing this. Love. Cheers, Kake. Super.